Hello students. So in this video we are going to discuss some examples on gamma functions. So our first example is, so evaluate integral from minus infinity to infinity e to the power minus x square dx. Now to evaluate this, we will break this into two integrals from minus infinity to 0 e to the power minus x square dx plus integral from 0 to infinity e to the power minus x square dx. Now in this first integral, this one, what we do is we put x is equal to minus t. So हम इसको I1 से डिनोट करते हैं. So dx will be equal to minus dt, and the limit of integration when x is minus infinity, so from here t will be infinity, and when x is 0 t will be 0. So I1 will comes out to be equal to integral from infinity to 0 e to the power minus t square, and dx is minus dt. And because of this negative sign, this limit of integration will change. So you will have this is 0 to infinity e to the power minus t square dt. And if you replace t by x in this one, so we can write it as 0 to infinity e to the power minus x square dx. So in this way we can see that this integral changes to the same integral, this 0 to infinity e to the power minus x square dx. And therefore we can say that integral from minus infinity to infinity e to the power minus x square dx is equal to twice from 0 to infinity e to the power minus x square dx. So now simply we will evaluate this integral, and to evaluate this integral we will put x square is equal to t. हम इसको गामा फंक्शन में चेंज करेंगे, और गामा फंक्शन में हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 होता है. तो फॉर दैट इस x स्क्वायर को हमें चेंज करना है लीनियर वेरिएबल में. सो वी पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t. सो इफ यू पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t हियर, सो यू हैव 2x dx इज इक्वल टू dt. And this implies dx is equal to dt upon 2x, and the limit of integration, if x is 0 t will be 0, when x is infinity t is infinity. So this integral will comes out to be equal to twice from 0 to infinity e to the power minus t, and dt की जगह पर dx की जगह पर हम पुट कर देंगे dt अपॉन 2x, और x की वैल्यू भी आप यहाँ पर डाल दोगे, x इज रूट टी. तो ये हो गया आपके पास dt अपॉन 2 रूट टी. ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस t को हम ऊपर ले जाएंगे, सो दैट दिस विल चेंजेस टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस टी dt. और ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया? गामा फंक्शन. इसको आप लिख सकते हो गामा 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे यहाँ पर गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज रूट पाई, एंड सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट पाई. सो दिस इंटेग्रल, इसको हमने एवेलुएट करके निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू रूट पाई. ठीक है, ये हमने निकाला है, इवेलुएट किया है इसको लास्ट में. सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, to express integral from 0 to 1 x to the power p into 1 minus x to the power q and whole raised to the power n dx in terms of gamma functions where p, q and n they all are greater than 0, एंड हेंस वी हैव टू इवेलुएट. उसके बाद इसे चेंज करने के बाद गामा फंक्शन में हमें करना है हेंस इवेलुएट
इंटेग्रल 0 to 1 x to the power 5 into 1 minus x to the power 3 whole raised to the power 10। ऑब्वियसली अगर आप इस इंटेग्रल को इवैल्यूएट कर लोगे तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके आप वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ p इज इक्वल टू 5 है, q आपका है 3 एंड n हमारे पास हो गया 10। वो वैल्यूज़ डाल के हम इस इंटेग्रल को फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इंटेग्रल को गामा फंक्शन में चेंज करते हैं। तो डायरेक्टली आप देख रहे हो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास होता है e की पावर माइनस एक्स। अब इसमें e की पावर माइनस एक्स नहीं है, तो इसका मतलब हम पहले इसको बीटा फंक्शन में चेंज करेंगे और फिर बीटा फंक्शन को आप गामा फंक्शन में चेंज करोगे। बीटा फंक्शन में हमारे पास होता है x की पावर एंड 1 माइनस एक्स की पावर। तो यहाँ हमारे पास है x टू दी पावर q, सो दैट्स वाई वी विल पुट x रेज टू दी पावर q इज इक्वल टू p, so that q into x to the power q minus 1 dx is equal to dt and the limits x0 t0, x को यहाँ 1 डालोगे तो t की वैल्यू 1। so this integral will change to x is equal to यहाँ से आपके पास आ रहा है x is t raised to the power 1 by q। so from here dx की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। dx होगा हमारे पास dt अपॉन q into x to the power q minus 1 and which can be written as dt upon q into x की हम ये वैल्यू डाल देंगे t raised to the power 1 by q and whole raised to the power q minus 1। ठीक है, तो q minus 1 डिवाइडेड बाई q आ जाएगी हमारे पास t की वैल्यू। तो वो हम इस इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जो गिवन इंटेग्रल है हमारा, सपोज आप इसको i से डिनोट कर रहे थे, तो i विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 x की पावर q, हमारे पास t था तो यानी कि x आपके पास t टू दी पावर t रेज टू दी पावर 1 बाई q एंड होल रेज टू दी पावर हो गया p। दिस विल बी 1 माइनस t होल रेज टू दी पावर n और dx हमने निकाल लिया dt अपॉन q इंटू t रेज टू दी पावर q माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई q फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से हम t की पावर्स को कंबाइन कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास 0 to 1, ये t रेज टू दी पावर था p बाई q और इसको हम यहाँ ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर ले जा कर के ये t की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगा माइनस q माइनस 1 डिवाइडेड बाई q। ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस t रेज टू दी पावर n dt और ये 1 बाई q हमारे पास आ गया बाहर जो कांस्टेंट था। इसको और सिंप्लीफाई करें हम, 1 बाई q बाहर है, इंटेग्रल 0 to 1 t की पावर देखिए कितना आ रहा है आपके पास, t माइनस q प्लस 1 डिवाइडेड बाई q लिख सकते हो या तो आप, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये आएगा q बाई q यानी कि 1, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए t रेज टू दी पावर t बाई q और माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1 बाई q एंड माइनस 1। तो p प्लस 1 अपॉन q है इस तरह से ये हमारे पास, एंड माइनस 1 एंड 1 माइनस t रेज टू दी पावर n dt, दिस इज 1 माइनस t। एंड सो ये आपका बीटा फंक्शन में चेंज हो गया। क्या लिख सकते हो आप इसे बीटा फंक्शन में, 1 बाई q इंटू बीटा ऑफ p बाई q प्लस 1 बाई q या फिर p प्लस 1 अपॉन q एंड ये पावर n है तो ये हो गया आपका n प्लस 1। और इस बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं चेंज करके। सो दैट कैन बी रिटन एज, मीन्स जो गिवन इंटेग्रल है आपका i विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई q हमारे पास ऑलरेडी बाहर था, सो दिस इज गामा ऑफ p प्लस 1 बाई q गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस 1 बाई q प्लस n प्लस 1। तो गामा फंक्शन में चेंज हो गया।
नेक्स्ट जो हमें इंटेग्रल को इवेलुएट करना था वो अभी मैंने आपको बताया पीछे कंपेयर करके कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो p की जगह हम 5, q आपका हो जाएगा q इज़ 3 एंड n इज़ 10। तो वो हम इसमें पुट करेंगे। सो फॉर टू इवेलुएट ये जो गिवन इंटेग्रल है, सो कंपेयरिंग we will have p is equal to 5, q is equal to 3 and n is equal to 10. We have integral 0 to 1 x to the power 5 into 1 minus x to the power 3 and whole raised to the power 10 dx will be equal to 1 by q यानी कि 3, यहाँ हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, गामा ऑफ p प्लस 1 by q यानी कि 5 plus 1 divided by 3, gamma n plus 1 means 10 plus 1 and divided by gamma, इन्हीं को ऐड करना है हमें। ये 5 plus 1 by 3 6 by 3 2 आएगा आपके पास, और ये है आपके पास 11, so gamma 2 plus 11 एंड इसको हम आगे बस सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया 1 by 3 gamma 2 gamma 11 upon gamma 13 and this can be solved। गामा 13 को हम पहले नीचे सॉल्व कर लेंगे। गामा 13 आपका क्या आएगा, या सीधा डायरेक्ट आप पूरा ही सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो इसको। तो ये हो गया 1 by 3, गामा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, गामा 11 इज़ 10 फैक्टोरियल, गामा 13 इज़ 12 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, so 1 by 3 into 10 factorial divided by 12 into 11 into 10 factorial, ये 10 factorial कैंसिल और ये हमारा मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 12 into 11 into में 3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, so we are getting it is 1 upon 396 and in this way we have evaluated this completely। तो एक दो एग्जांपल और करेंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइप के आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो हमारे इसमें आ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट इंटेग्रल 0 to pi by 2 रूट 10 थीटा डी थीटा। तो गामा फंक्शंस की हेल्प से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। सो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल 0 to pi by 2 रूट साइन थीटा अपॉन रूट कॉस थीटा डी थीटा, and which can be written as integral 0 to pi by 2 sin theta to the power 1 by 2 cos theta to the power minus 1 by 2 d theta। अब ये जो हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, sin theta to the power p and cos theta to the power q d theta, and this formula is equivalent to 1 by 2 of गामा p प्लस 1 by 2 गामा q प्लस 1 by 2 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस 1 by 2 प्लस q प्लस 1 by 2। तो वो फार्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ p की जगह आपके पास है 1 by 2 एंड q इज़ माइनस 1 by 2। सो यू आर हैविंग गामा ऑफ 1 by 2 प्लस 1 by 2 गामा माइनस 1 by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे इन्हीं को हमें ऐड करना है, मीन्स गामा ऑफ 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस माइनस 1 by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर लें हम इसे। सो 1 by 2 गामा, दिस इज़ 3 by 2 by 2 यानी कि 3 by 4, दिस वन इज़ गामा 1 by 4 एंड गामा 3 by 4 प्लस 1 by 4, ये आ जाएगा हमारे पास गामा 1 एंड गामा 1 इज इक्वल टू 1, दिस थिंग वी नो। So we are having it as 1 by 2 of gamma 3 by 4 into gamma 1 by 4।
अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डुप्लीकेशन फार्मूला जो हमने पढ़ा था। क्या था वो फार्मूला? सो लेट मी रिमाइंड यू, दैट इज गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 to the power 2m minus 1 इंटू गामा ऑफ 2m, गामा 2m। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम ये वैल्यू निकालेंगे। हमें चाहिए 1/4 एंड 3/4। तो आप देख रहे हो यहाँ अगर हम m की वैल्यू 1/4 डालें तो 1/4 आएगा, एंड 1/4 प्लस 1/2 अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 3/4। सो वी पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन दिस फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ रही है गामा, यही निकाल लेते हैं इसको हम, गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा 3/4 आएगा। दिस इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 to the पावर m को हमने क्या पुट किया 1/4, तो 2 to the पावर 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 माइनस 1, तो 2 की पावर माइनस 1/2 एंड गामा 2m यानी कि 2 इंटू 1/4 मीन्स गामा 1/2। तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? गामा 1/2 इज रूट पाई, वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये आपके पास आ गया रूट पाई, ये और ये रूट पाई, तो ये हमारे पास हो गया पाई, और ये 2 की पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, या नीचे ही हम लिख देते हैं इसको, यानी कि 2 की पावर 1/2 मीन्स ये हो गया रूट 2। नीचे था आपके पास 1/√2, तो रूट 2 इंटू में पाई। So gamma 1/4 into gamma 3/4 is equal to root 2 into pi, and therefore this integral will be, जो i की वैल्यू थी वो हमारे पास हो गया, ये यहाँ से हटा दो। So this is equal to 1/2 into में root 2 into pi, and this gives you, this is equal to pi by root 2. So in this way we evaluated square root of tan theta by using this formula sin p theta cos q theta d theta from 0 to pi/2 and duplication formula. So next एक एग्जांपल और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Next is to evaluate or to prove that gamma n into gamma 1 minus n, this is equal to pi upon sin n pi, where ये कब होगा? when we are given that integral from 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x, this is given to be equal to with respect to x है ये, is equal to pi upon sin n pi. So in fact हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू दी हुई है pi upon sin n pi, and we have to prove gamma n into gamma 1 minus n is pi upon sin n pi. That means कि हमें gamma n into gamma 1 minus n को सिंपली इस इंटेग्रल के इक्वल दिखाना है। अब हमने बीटा फंक्शन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन इंटू डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर देखिए, तो हम गामा इवेल्युएट करना है गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन। तो अगर हम इसको गामा 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। सो दिस इज इक्वल टू दिस रिजल्ट, एंड this can be written as gamma n gamma 1 minus n divided by gamma of n plus 1 minus n, गामा 1 को ये लिख दिया। तो अब ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन रहा है बीटा एम एन का, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, मीन्स ये फार्मूला हमारा आ गया। दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ n 1 माइनस n।
और बीटा एम एन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी हुई है, दैट इज इक्वल टू जो आपकी 0 टू इन्फिनिटी वाला फार्मूला है, सो दैट इज इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ n है, सो x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n, यानी कि n प्लस 1 माइनस n. So this is integral 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power 1, which is our same integral, और इसकी हमें वैल्यू गिवन है pi upon sin n pi, and this proves our this example. So these are some examples of gamma functions. ऐसे और बहुत से examples हैं, तो आगे फिर कभी हम और बाकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, बट ये आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और जिनके बेसिस पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.